Hello friends, I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we will read a story from NCERT English Supplementary Reader Book of Standard 9th. The name of this chapter is In the Kingdom of Fools. This story is a folk tale of Kannada language, and this story has been taken from the collection of Ramanujan's folk tales. Let's start the story. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा हमेशा से माना गया है कि जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा से ही खतरनाक रहे हैं और उन्हें कुछ समझदार लोगों के द्वारा ही अच्छे से समझा जा सकता है. Who are the fools in this story? इस कहानी में मूर्ख लोग हैं कौन? What happens to them? और उनके साथ होता क्या है? In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. मूर्खों के साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. जैसे कि बाकी राज्यों में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता था, वैसा ये लोग नहीं चाहते थे. इसलिए इन लोगों ने दिन को रात और रात को दिन बनाने का निश्चय किया. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात के समय में जगेगा, अपने खेतों में काम करेगा, अपने व्यापार का काम करेगा जब सिर्फ अंधेरा होगा, रात होगी, और जैसे ही सुबह होने वाली होगी वैसे ही ये लोग सोने चले जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. और जो कोई भी इस आदेश को नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death. लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि उन्हें मृत्यु का डर था. The king and the minister were delighted at the success of their project. राजा और उसके मंत्री जो थे वे सभी अपने इस कार्य के सफल होने पे काफ़ी खुश थे. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसके शिष्य उस शहर में आए. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. काफ़ी खूबसूरत शहर था. दिन था लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था. Everyone was asleep. Not a mouse stirring. सभी लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि एक चूहा भी जगा हुआ नहीं था. Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि जीवों को भी, जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. वे दोनों जो यात्री यहाँ पहुँचे थे, ये दोनों बहुत ही आश्चर्य में पड़े हुए थे ये सब देख करके. वे लोग शाम तक इधर उधर नगर में ही घूमते रहे और जैसे ही शाम हुई अचानक से सभी लोग जग गए और सभी अपने अपने कार्यों में लग गए. The two men were hungry. ये दोनों जो व्यक्ति थे ये भूखे थे. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. और अब क्योंकि दुकानें खुल चुकी थीं, ये लोग खाने पीने की चीज़ें खरीदने गए. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single दुद्दू. ये लोग ये जान के और भी आश्चर्य में पड़ गए कि यहाँ हर एक चीज़ जो थी उन सभी चीज़ों की एक ही कीमत थी, एक दुद्दू. दुद्दू एक करेंसी होगी, जैसे कि रुपया है, पाउंड है, डॉलर है, उसी तरह से. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a दुद्दू. चाहे वो चावल खरीदे या फिर वो केले खरीदे, उन्हें हर चीज़ के लिए एक ही रुपया देना था. The guru and his disciple were delighted. गुरु और उसके शिष्य दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए. They had never heard of anything like this. उन्होंने कभी भी इस तरह की किसी भी चीज़ को सुना नहीं था. मतलब ऐसी किसी स्थिति को उन्होंने ना देखा था ना जाना था. They could buy all the food they wanted for a rupee. वे लोग जो भी भोजन चाहते वो सिर्फ 1 रुपये में खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने भोजन पका लिया और वो खा चुके थे तो गुरु जो थे उन्हें उन्होंने महसूस किया कि ये साम्राज्य मूर्खों का है, इसलिए यहाँ उनके लिए रुकना ठीक नहीं होगा. This is no place for us. ये जगह हमारे लिए नहीं है. Let's go.
ही सेड टू हिज डिसाइपल, उन्होंने अपने शिष्य से कहा चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य जो था वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि यहाँ हर चीज़ क्या थी, काफ़ी कम कीमत में ही मिलती थी, सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, उसे जो चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ सस्ता और अच्छा भोजन था। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तब गुरु ने कहा कि ये सभी लोग मूर्ख हैं और ये सभी चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चलेंगी, और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वे लोग आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य जो था उसने अपने गुरु की समझदारी को नहीं सुना, नहीं सोचा। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अंत में गुरु जो थे उन्होंने हार मान ली और कहा डू वॉट यू वॉन्ट, तुम जो करना चाहते हो करो, आई एम गोइंग, और लेकिन मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल। अब शिष्य जो था वो यहीं रुका रहा, और क्योंकि सारी चीज़ें बहुत सस्ती थी तो वो अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ें उसे अच्छी लगती थी, घी, सभी कुछ खाता और एक बैल की तरह वो मोटा होता चला गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर जो था वो एक व्यापारी के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, उसने दीवार में एक बड़ा सा होल बना दिया, एक बड़ी सी छेद, बड़ा सा जगह बना दिया और उससे ही अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और जैसे ही वो अपनी चोरी का सामान लेके निकल रहा था, वैसे ही वो जो दीवार थी वो गिर गई और वो वहीं मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, उसका भाई जो था वो राजा के पास गया और उसने शिकायत की, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। महाराज, मेरा भाई जब हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, जो हमारा जो पैतृक पेशा है, जब उसे वो कर रहा था उसी दौरान उसकी मौत हो गई, उसके ऊपर दीवार गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और ये सारा दोष इस व्यापारी के ऊपर है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे एक अच्छा और मजबूत दीवार बनवाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, मुझे लगता है कि आप इसे सज़ा दीजिए, और सज़ा देने के बाद आप जिस परिवार के साथ ये दुर्घटना हुई है उसे आप कुछ मुआवजा भी दीजिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, राजा ने कहा कि न्याय होगा, तुम चिंता मत करो, और उन्होंने तुरंत ही उस घर के मालिक को बुला भेजा, व्यापारी को बुला भेजा। When the merchant arrived, the king questioned him, "What is your name?" जब व्यापारी आया तो राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच, योर हाइनेस, तब उसने कहा, मेरा नाम सच और सच है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्जल्ड योर हाउस, क्या तुम उस समय घर में ही थे जब ये जो आदमी मर चुका है वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था? येस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने वो दीवार तोड़ के अंदर घुसा था और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, इसलिए दीवार उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यहाँ पे ये जो आदमी है ये कह रहा है कि तुम इसके दोषी हो, इसके भाई की मृत्यु के दोषी हो, तुमने ही उसे मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सज़ा देनी ही पड़ेगी। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुल अप द वॉल, उसने कहा कि महाराज, मैंने तो दीवार नहीं गिराई, मैंने तो उसे नहीं हटाया वहाँ से। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये गलती पूरी तरह से उस आदमी की है जिसने ये दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने इसे ठीक तरह से नहीं बनाया, इसलिए आप उसे सज़ा दीजिए। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम,
ये दीवार जो है ये मेरे पिताजी के समय में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है और वह नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। राजा ने तुरंत ही अपने दूतों को भेज दिया उस मिस्त्री को लाने के लिए जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। वे लोग उसके हाथ और पैर बांध के ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? क्या तुमने ही इस आदमी के पिता के जीवित रहते वक्त उस दीवार को बनाया था? येस माई लॉर्ड, आई डिड। हाँ महाराज, मैंने ही बनाया था। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई थी? यह एक गरीब आदमी पे गिर गया और वो बेचारा आदमी मर गया। You have murdered him. We have to punish you by death. तुमने उसकी हत्या की है, इसलिए तुम्हें दंड देना ही होगा, तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि राजा अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते, उस गरीब मिस्त्री ने कहा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि आप आदेश दें, आप मेरी बात को सुनिए। इट्स ट्रू, आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। ये सच बात है कि ये दीवार मैंने ही बनाई थी और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मेरा ध्यान उसे बनाने पे नहीं लगा था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. ये सारी गलती उस लड़की की है, उस नर्तकी लड़की की है जो उस दिन उस गली से बार बार अपने पैरों में पायल पहन के उन्हें बजाते हुए जा रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना काम और अपना ध्यान अपने काम पे नहीं रख पाया। You must get that girl, dancing girl. आपको उस नर्तकी लड़की को ढूंढना चाहिए। I know where she lives. मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। You are right. The case deepens. We must look into it. तुम ठीक कह रहे हो। ये बात जो है, ये केस जो है, ये तो गहरा ही होता चला जा रहा है। हमें इस पे और जांच पड़ताल करनी चाहिए। It is not easy to judge such complicated cases. इतने जटिल केसेस को सॉल्व करना, उसका निपटारा करना इतना आसान नहीं है। Let's get that dancer wherever she is. वो नर्तकी कहीं भी हो, चलो हम उसे ढूंढते हैं। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. वो नर्तकी लड़की जो कि अब एक बूढ़ी स्त्री हो चुकी थी, वो कांपते हुए कोर्ट में पहुंची। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? क्या तुम, जब यह बूढ़ा व्यक्ति या गरीब मिस्त्री जो है जब उस दीवार को बना रहा था, तो क्या तुम बार बार उस गली से आ जा रही थी? डिड यू सी हिम? क्या तुमने उसे देखा था? येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। इसका मतलब है कि तुम अपने पायल को बजाते हुए बार बार आ रही थी, जा रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम युवती थी और इस वजह से तुमने इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, जिसकी वजह से इसने इस तरह के खराब दीवार का निर्माण किया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये एक बेचारे बर्गलर पे, एक चोर पे गिर गया और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है, इसलिए तुम्हें सज़ा दी जाएगी। She thought for a minute and said, उसने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, My lord, wait. महाराज, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। I know now why I was walking up and down that street. मुझे याद है कि मैं उस गली में बार बार क्यों आ जा रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था ताकि वो मेरे लिए कुछ गहने बना दे। He was a lazy scoundrel. वो जो था वो बहुत ही आलसी था। He made so many excuses. वो बहुत सारे बहाने करता था। Said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने पूरे दिन मुझसे यही कहता रहा कि वो मुझे अब बना के देगा, तब बना के देगा, और वो पूरे दिन ऐसा ही करता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times.
और इसी वजह से मुझे उसके घर लगभग दर्जनों बार आना जाना पड़ा। दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और इसी वजह से मुझे आते जाते समय इस ब्रिकलेयर ने, इस मिस्त्री ने देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी। माई लॉर्ड, इट्स द डैमेंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस। राजा जो थे उन्होंने इस एविडेंस को सुनने के बाद, उसके द्वारा ये जो दी गई दलील थी उसे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, इसकी कोई गलती नहीं, ये तो सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और अंततः हमें ये सही में जो मुजरिम है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जाओ और जल्दी उस सुनार को ले आओ, वो चाहे जहाँ भी छुपा हो। द किंग्स बैलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। राजा के जो सिपाही थे वे लोग उस सुनार के पास गए जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने अपने ऊपर इस आरोप को सुना तो उसके पास भी अपनी एक कहानी थी राजा को बताने के लिए। My lord, he said, उसने कहा महाराज, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब सुनार हूँ। It's true I made this dancer come many times to my door. ये बात सच है कि मैंने इस नर्तकी को बार बार अपने यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि जो अमीर व्यापारी था उसी की वजह से, उसी के घर के गहने मैं बनाने में लगा था, जिसकी वजह से मैं इसके गहने समय पे नहीं बना पाया। They had a wedding coming and they wouldn't wait. उन लोगों के यहाँ शादी थी, शादी होने वाली थी और वे लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे। You know how important rich men are. Sorry, how impatient rich men are. आपको तो पता ही है कि ये अमीर लोग कितने ज़्यादा अधैर्यशील होते हैं, इनके अंदर धैर्य की कितनी कमी होती है। Who is this rich merchant who kept you from finishing the poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? कौन था वो अमीर व्यापारी जिसने कि तुम्हें इस औरत का कार्य, इस औरत के गहने बनाने का कार्य समय पर पूरा नहीं करने दिया, जिसकी वजह से वो बार बार तुम्हारे यहाँ आती जाती रही और इस मिस्त्री का ध्यान भटकता रहा, जिसकी वजह से ये दीवार गिरने की पूरी घटना हो गई है। Which has now fallen on an innocent man and killed him. और जिस दीवार के गिरने की वजह से अब एक बेचारा आदमी जो निर्दोष आदमी था वो उसके गिरने की वजह से मर गया है। Can you name him? क्या तुम उस व्यापारी का नाम बता सकते हो? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. सुनार जो था उसने व्यापारी का नाम लिया और ये कोई और नहीं बल्कि वही व्यापारी था जिसकी दीवार के नीचे गिरने से चोर की मृत्यु हुई थी। Now justice had come full circle. अब न्याय जो था इसका एक पूरा साइकिल बन गया, मतलब घूम फिर के अंत में व्यापारी जो था वही दोषी पाया गया। Thought the king back to the merchant. और इस तरह से राजा ने भी यही सोचा कि अंत में व्यापारी जो है यही एक कल्प्रिट के रूप में सामने आए हैं। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. जब उसे ज़बरदस्ती फिर से कोर्ट में लाया गया तो वो रोते हुए चिल्लाते हुए आया। It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. मैं नहीं बल्कि मेरे पिता ने ही ज्वेलरी के लिए, गहनों के लिए ऑर्डर दिया था। He is dead. I am innocent. वो तो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is a true murderer. राजा ने अपने मंत्रियों के साथ कंसल्ट किया, उनसे विचार विमर्श किया और फिर उन्होंने निर्णय देते हुए कहा ये तो सत्य है कि तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं और वो अब ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। और वो मर चुके हैं, इसलिए किसी ना किसी को तो उनकी जगह पे दंड दिया ही जाना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। अभी तक जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पिता से विरासत में तुम्हें मिली हैं, वो चाहे जो भी संपत्ति, चल असल जो भी संपत्ति है उसका तुमने भोग किया है, इसलिए उनके अमीरी का, उनके धन और वैभव का तुमने भोग किया है, इसलिए उनके पापों को भी तुम्हें ही भोगना होगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई।
जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मैं समझ गया था कि इस पाप की असली जड़ तुम ही हो और इसलिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। इसके बाद राजा ने निर्णय दे दिया, अपना सुना दिया कि कार्यवाही को आगे बढ़ाई जाए, इसे मार दिया जाए। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. और जैसे ही जो सिपाही थे उन्होंने फांसी का फंदा तैयार किया, तब इसके बाद जो मिनिस्टर थे उन्होंने देखा, मंत्री जो थे उन्होंने देखा कि ये जो व्यापारी है वो इतना पतला है कि उसके गले में ये फांसी का फंदा फिट ही नहीं आ रहा है, तो फिर उसे फांसी दी कैसे जाए। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। इसके बाद उन्होंने राजा से फिर से गुहार लगाई, कहा, और राजा भी इस बात को चिंतित हो गए। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। ही शुड व्हेन ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. फिर उन्होंने सोच विचार के कहा कि अब उन्हें एक ऐसा मोटा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिसके गले में ये फंदा बिल्कुल फिट हो जाए। The servants are immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तुरंत ही सारे नौकरों को नगर में भेज दिया गया ताकि वो किसी ऐसे मोटे व्यक्ति को पकड़ के लाएं जो इस फांसी के फंदे में फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और तभी उन जो सैनिक, जो नौकर गए हुए थे एक मोटे आदमी की तलाश में, उनकी नज़र उस शिष्य पे पड़ी, गुरुजी के उस शिष्य पे पड़ी जो इतने महीनों से घी, चावल, ये सब कुछ खा खा के मोटा हो गया था, उसने आपको काफ़ी मोटा कर लिया था। What have I done wrong? I'm innocent. मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ। I'm a सन्यासी, he cried. उसने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। That may be true. ये सत्य हो सकता है, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. उन्होंने कहा, ये सत्य हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन हमें राज दरबार से ये आदेश मिला है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो फांसी के फंदे में जिसकी गर्दन फिट हो सके। और उन्होंने ऐसा कहते हुए उसे, शिष्य को, वे लोग फांसी के फंदे वाली जगह पे लेके चले गए। He remembered his wise guru's words. अब शिष्य जो था उसे अपने गुरु की बातें याद आईं। This is a city of fools. ये नगर जो है मूर्खों का है। You don't know what they will do next. तुम्हें नहीं पता कि वे लोग आगे क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वह मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, उसी वक्त उसने अपने गुरु का अपने हृदय में ध्यान किया। Asking him to hear his cry wherever he was. और वो उनसे मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वो जहाँ कहीं भी हो वो उसकी पुकार को सुने। The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. क्योंकि गुरु जो थे उनके पास दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने जहाँ कहीं भी थे उन्होंने वहीं से देख लिया। He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. और अपनी इन्हीं शक्तियों की वजह से वे जो अभी होने वाला है, जो हो रहा है या पहले जो हो चुका है, इन सभी चीज़ों को वो जान जाते थे, देख लेते थे। He arrived at once to save his disciple. वो एक ही क्षण में अपने शिष्य को बचाने के लिए आ पहुँचे। Who had got himself into such a scrape through love of food. उस शिष्य को बचाने आ पहुँचे जिसने सिर्फ भोजन के लालच में आके अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो आए, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा और उसे धीरे से फुसफुसाते हुए कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. फिर वो राजा के पास पहुँचे और उनसे कहा, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? फिर उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप तो काफ़ी समझदार हैं, आप मुझे ये बताइए कि कौन ज़्यादा महान है, कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? Of course the guru. बिल्कुल गुरु ही बड़े हैं। No doubt about it. Why do you ask? इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं है, आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? Then put me to the stake first.
पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने कहा, जब राजा ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु बड़े हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तब गुरु ने कहा कि मुझे सबसे पहले फांसी पे चढ़ाओ, उसके बाद मेरे शिष्य को मृत्युदंड दे देना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब शिष्य ने ये बात सुनी तो वो समझ गया और कहा, Me first, you brought me here first, put me to death first, not him. मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओ, इन्हें नहीं, क्योंकि तुम लोग मुझे पहले लेकर आए थे। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी कि कौन पहले मरेगा। The king was puzzled by this behavior. राजा जो था वो इस व्यवहार से ताज्जुब में पड़ गया। He asked the guru, Why do you want to die? उसने गुरु से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने तो इसे इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक मोटे व्यक्ति की ज़रूरत थी फांसी पर चढ़ाने के लिए। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the guru. तब गुरु ने कहा, आप मुझे इस तरह के प्रश्न मत पूछिए, बल्कि मुझे मृत्यु दंड दीजिए। Why? There is some mystery here. क्यों? लगता है कि कोई रहस्य है। As a wise man, you must make me understand. एक समझदार व्यक्ति होने के नाते आप मुझे ये समझाइए। Will you promise to put me to death if I tell you? asked the guru. तब गुरु ने पूछा कि क्या मैं अगर आपको ये बता दूं तो आप मुझे मरने देंगे? The king gave him his solemn word. राजा ने उनसे कहा कि बिल्कुल ऐसा करेंगे। The guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him. गुरु जो थे उन्होंने फुसफुसाते हुए राजा से सारी बात बता दी। Do you know why we want to die right now, the two of us? आपको पता है कि हम दोनों अभी इसी वक्त क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हम लोग पूरी दुनिया में घूमे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग किसी भी ऐसी जगह नहीं पहुँचे जहाँ आप जैसा राजा हो या आपके साम्राज्य जैसा कोई साम्राज्य हो। That stake is the stake of the God of justice. ये जो फांसी का फंदा है, ये न्याय के देवता के द्वारा दिया गया फंदा है। It's new. It has never had a criminal on it. ये जो फंदा है ये बिल्कुल नया है, इस पे कभी भी किसी अपराधी को फांसी नहीं दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो कोई भी इस पे सबसे पहले चढ़ के मरेगा वो इस देश का राजा बनेगा जब वो जन्म लेगा दोबारा। And whoever goes next will be the future minister of this country. और जो कोई भी उसके मरने के तुरंत बाद मरेगा वो आने वाले भविष्य में फिर से इस राज्य का मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life. हम लोग अपने इस संन्यास के जीवन से ऊब चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. और इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी सुखद और अच्छा होगा कि हम लोग भी राजा और मंत्री बनेंगे। Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first, remember. अब फिर गुरु ने कहा, अब आप अपने शब्दों को याद रखिए, वादे को याद रखिए और मुझे मृत्यु दंड दीजिए। The king was now thrown into deep thought. राजा अब गहरी सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था कि अगला जो जीवन आने वाला है उसमें वह अपना साम्राज्य किसी और के हाथों खो दे। He needed time. उसे कुछ समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. इसलिए उसने कहा कि अभी ये जो सज़ा दी जाने वाली थी इसे रोक दिया जाए, इसे कल दिया जाएगा। और फिर उसने अपने मंत्री के साथ विचार विमर्श किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि हम अपने साम्राज्य को अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक ओवर आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो हम खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं जिससे कि हम राजा और मंत्री बन के अगले जन्म में पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, he said, and the minister agreed. उसने कहा कि ये जो सन्यासी व्यक्ति हैं, ये जो लोग, ये पवित्र मनुष्य जो हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। और उसकी इस बात से जो मंत्री था वो भी सहमत हुआ। So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. इसलिए उसने दंडाधिकारियों से कहा कि हम लोग क्रिमिनल्स को, अपराधियों को रात में भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first.
जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है उसे फांसी की सज़ा दे देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तुरंत दूसरे व्यक्ति को भी साथ यही करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन। उसी रात राजा और उसके मंत्री जो था उनका, वे दोनों जेल में धीरे से चले गए बिना किसी को बताए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, डिस्गाइड देमसेल्व्स एज द टू। इसके बाद उन्होंने गुरु और शिष्य को क्या किया? आज़ाद कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने अपना वेश बदला। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और इसके बाद उन्होंने जब अपना वेश बदला, तो क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही उन दंडाधिकारियों को कह रखा था, उन नौकरों को कह रखा था कि आने के साथ ही उन्हें फांसी दे दी जाए, वैसा ही उन लोगों ने कर दिया। उन्होंने पहले राजा को और फिर मंत्री को फांसी पे चढ़ा दिया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनके शरीर को फांसी के फंदे से उतारा गया ताकि उन्हें चील कौवों को खाने के लिए दे दिया जाए, तब लोग घबरा गए। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने अपने सामने देखा कि उनके राजा और मंत्री का शव पड़ा हुआ है। The city was in confusion. अब पूरा जो साम्राज्य था वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, सभी लोग सोचने पे मजबूर हो गए। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन्होंने शोक में बिता दी। इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अब इस साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. तभी कुछ लोगों ने अचानक गुरु और शिष्य पे ध्यान दिया। उनका ध्यान अचानक गुरु और शिष्य पे गया और वे लोग तुरंत ही उन गुरु और शिष्य को पकड़ लाए जो कि बिना किसी को बताए ही नगर छोड़ के जा रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम सेड समवन। तब उनमें से किसी ने कहा कि हमें राजा और मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स अग्रीड, सभी लोग मान गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी दियर किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और शिष्य से ये आग्रह किया कि वे लोग उनके राजा और मंत्री बन के वहीं रुक जाएं। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. शिष्य जो था उसे इस बात के लिए मनाने में ज़्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन गुरु को इस बात के लिए मनाने और तैयार करने में काफ़ी समय लग गया। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister. अंत में ये गुरु जो थे वो और उनके शिष्य, ये दोनों ही इस बेवकूफ़ राजा और बेवकूफ़ मंत्री के इस साम्राज्य पे शासन करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और उन्होंने साथ ही में यह शर्त रखी कि वो इसी शर्त पे राजा और मंत्री बनेंगे जबकि वह पुराने सारे नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी देन, और उसी समय से रात के समय में रात और दिन के समय में दिन के कार्य किए जाने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू, और उसके बाद से हर एक चीज़ जिसकी प्राइस पहले एक डुडू हुआ करती थी अब वो बदल गई। अब सभी चीज़ों की कीमत अलग अलग हो गई। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और जैसे कि सामान्य तौर पे जो भी जगह होते हैं, जैसे लोग जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जीवन यापन की शैली शुरू हो गई। अब पुराने जो भी नियम थे वो बदल गए। Students, I hope this explanation must be helpful to you. If there is any problem in the explanation, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस एक्सप्लेनेशन में, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं, then you can comment in the comment section and let me know your queries. If you like, please share and subscribe and share it to your friends. Thank you for listening and thank you for watching.